السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 135 جو ہے بہت اہم آیت ہے اس چیز کے بارے میں، حق اور انصاف کی بات کرنے کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ حق بات ہمیشہ کہو، کبھی بھی ایسی بات نہ کہو کہ جو قسط کے خلاف ہو، انصاف کے خلاف ہو۔ انصاف کی بات، حق کی بات کہنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی ہر معاملے میں حق کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہے یا پھر دنیا کے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنی ذات کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے۔ ایک ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے ایمان لانے کے بعد؟ کہ حق کی طرفداری کی جائے، چاہے اس میں اپنے والدین کیوں نہ آ جائیں، کسی کی امیری غریبی تمہیں حق کہنے سے روکے نہ، منع نہ کرے، تو ہر حال میں حق بات کہو۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ قائم کرنے والے انصاف کو، شہداء للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اور اگرچہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہو، تمہیں مشکل لگے چاہے حق بات کہنا، اوی الوالدین والاقربین، یا والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے بارے میں، چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی حق بات کے فیصلہ کرو، اور چاہے تمہارے والدین کیوں نہ ہوں، ان کے معاملات میں بھی حق بات کرو، ناانصافی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ ان یکن غنیا، اگر وہ ہو مالدار، اور فقیرن، یا فقیر، کسی کی امیری، کسی کی غریبی تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے، چاہے وہ حق بات جس کے طرفداری تم نے کرنی ہے، جس کے بارے میں حق انصاف کی بات کرنی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، تمہیں کسی کا بھی یعنی جھجک یا کسی کے بارے میں بھی تمہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی امیری غریبی تمہیں نہیں روکنا چاہیے حق بات کہنے سے۔ فاللہ اولیٰ، تو اللہ زیادہ ولی ہے، بیہما، ان دونوں کا۔ تم کسی کی غریبی امیری کا فکر نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی کفیل ہے، اللہ ان کو پہلے بھی اللہ ہی ان کے کفیل تھے اور بعد میں بھی، لہٰذا تم کیا کرو؟ حق بات کہو، انصاف کی بات کرو، قسط کی بات کرو۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، اور کہ تم عدل نہ کر سکو گے، یعنی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ خواہشات کی پیروی کیا ہے؟ انسان کو عدل سے روکتی ہے۔ کس کی پیروی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرنے کے لیے۔ اللہ کے حکم کو مانو، اپنے خواہشوں کو نہ دیکھو، بلکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم منہ موڑ دو گے یا پھر تم اعراض کرو گے، یعنی بات ایسی کہنا، توڑ مڑوڑ کر بیان کرنا، یا پھر اعراض کر دینا، اگنور کر دینا، مجھے کیا لینا ہے کسی کے معاملات میں بھابھی کے معاملات میں، بھائی کے معاملات میں انٹرفیئر کروں، تو دونوں چیزیں بھی یہ غلط ہیں۔ یا تو پھر انسان انٹرفیئر ہی نہ کرے، اعراض برتے، اور یا پھر باتوں کو توڑ موڑ کر بیان کرے، صاف صاف بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ کانا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبردار، اللہ کو تمہارے ہر عمل کا پتہ ہے۔ یعنی ایمان کا حصہ ہے کیا؟ عدل اور انصاف کی بات کرنا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو با ایمان سمجھتا ہے، اور متقی پرہیزگار سمجھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر حق اور انصاف کی بات نہیں آتی، بھید بھاؤ ہے اس کے اندر، تو پھر اس کا ایمان کیا ہے؟ کمی ہے اس کے ایمان میں، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی ہر طرح کا ہی ایمان والوں سے خطاب ہے ایک تو اس آیت میں، اور دوسرا ہر طرح کے معاملات میں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ حق بات اور عدل کی بات، انصاف کی بات کرنے کا۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمینو، ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والوں کو یعنی ان کو سچا ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان لانا چاہیے۔ کس کا ایمان سچا تھا؟ کس کا ایمان سچا تھا؟ اصحابہ اکرام کا۔ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد کس قدر سچے تھے کہ انہوں نے پھر اسلام کے بارے میں، اسلام کو، اللہ کے حکموں کو آگے رکھا، اپنی خواہشات یا اپنی مرضی کو آگے نہیں رکھا۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान लाओ, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वल किताबिही, और किताब पर, कौन सी किताब? कुरान पर, अल्लज़ी, वो जो, नज़्ज़ला, उतारा गया, नज़्ज़ला और अनज़ला दोनों एक ही रूट है, यानी ऊपर से कोई चीज़ का नीचे उतरना, जैसे नज़ला वो भी ऊपर से नीचे को आता है, तो इसी से है अनज़ला। लेकिन नज़्ज़ला और अनज़ला में फ़र्क क्या है? रूट एक है, लेकिन जो नज़्ज़ला है इसका माना होता है आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ का उतरना। जिस तरह से कुरान जो है ये दौर के हिसाब से और लोगों के हालात के हिसाब से धीरे धीरे करके एक एक दो दो आयत अल्लाह ताला उतारते थे, तो इसलिए कुरान के लिए क्या आता है? नज़्ज़ला। तो यहाँ मुराद क्या है? कुरान। नज़्ज़ला वल किताब अल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, नाजिल किया अल्लाह ने अपने रसूल पर, उतारा अल्लाह ने अपने रसूल पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वल किताब, और किताब, अल्लज़ी, वो जो, अनज़ला, उसने नाजिल किया, मिन कबल, उससे पहले। अब दोनों का माना एक ही है, ये भी अनज़ला का भी उतारना और नज़्ज़ला का भी उतारना, लेकिन ये कौन सा उतारना है? अनज़ला, यानी तौरात और इंजील एक बार में उतारी गई, वो कुरान के जैसा एक एक आयत या फिर मौके महल के मुताबिक नहीं, बल्कि एक साथ एक किताब की शक्ल में उतारा गया, उसको एक बार में उतारा गया। तो अल्लज़ी अनज़ला मिन कबल, जो उसने नाजिल किया उससे पहले। कुरान से पहले कौन सी किताबें उतरी थी? तौरात और इंजील, ये उससे पहले उतरी। यानी वमन, और जो कोई यकफुर, कुफर करेगा, इनकार करेगा, बिल्लाहि, अल्लाह का, और जो कोई कुफर करेगा, इनकार करेगा अल्लाह का, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों का, व कुतुबिही, और उसके किताबों का, व रसूलिही, और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिरी, और यौमुल आखिरत का, फ़कत, तो तहकीक, दल्ला, वो भटक गया, दलालन, भटकना, बईदा, दूर का। यानी इस आयत में जो है ईमान के बारे में, यानी ईमान और उसके जो 5 अरकान हैं अहम, उनके बारे में बताया गया है कि इसके बगैर ईमान अधूरा है। अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और किताबों पर ईमान, और फिर उसके बाद में फरिश्तों पर ईमान, यानी जो अहम 5 अरकान हैं इस्लाम के, उसके ऊपर तवज्जो दिलाई गई है ईमान वालों को कि इन पर ईमान लाए बगैर इंसान का ईमान अधूरा है। और फरिश्तों में से सबसे अहम फरिश्ते जो हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राईल अलैहिस्सलाम, इन पर भी हमारा ईमान, यानी ये ख़ास फरिश्ते हैं 4, इन पर भी हमारा ईमान है। और जो जन्नत के फरिश्ते हैं वो रिदवान हैं, और जो मुनकर नकीर हैं वो हिसाब किताब के फरिश्ते हैं। इनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ उन पर ईमान भी होना चाहिए, और उनके कामों के बारे में भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इनको किस किस चीज़ पर, अल्लाह ताला ने इनको क्या ड्यूटीज़ लगाई हैं इनके। वो कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर, और किताबों पर ईमान, और तमाम किताबों पर ईमान। कुतुब क्या है? जमा है किताब की, यानी अब जो पिछली किताबें हैं उन सब पर भी ईमान, और रसूलिही, और रसूलों पर ईमान, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान। आखिरत यानी मौत के बाद जी कर मरने पर ईमान। ये सब अल्लाह के पास एक दिन जमा होंगे, और फिर वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास अल्लाह ताला दोबारा उठाएंगे। देखिए, जो यहूद और नसारा थे ना, या फिर जो भी मुशरिकीन हैं, कुफ़ार हैं, उनका इन चीज़ों पर ईमान नहीं कि दोबारा जीकर मरने के बाद भी ज़िंदगी है, या फिर दोबारा उठाया भी जाएगा, इस पर ईमान नहीं। लेकिन हमारा ईमान इस पर भी है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि किताबों के बारे में हम मुसलमानों का ईमान क्या है? क्योंकि ईमान जब मुकम्मल होता है जब इंसान को उसके बारे में पता भी हो। ईमान बगैर नॉलेज के कंप्लीट नहीं होता। अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान,
اور ان کی लाई हुई किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान। इसके बगैर ये ऐसे अहम अरकान हैं इस्लाम के कि इसके बगैर ईमान मुसलमान का कंप्लीट ही नहीं होता। लेकिन आज मुसलमान तो बहुत से हैं, लेकिन कितने मुसलमान हैं जिनको अल्लाह पर ईमान का माना पता होगा कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद फिर इंसान को किसी तरह का शिर्क नहीं करना और अल्लाह ही से मांगना है, किसी से नहीं मांगना। ये है अल्लाह पर ईमान। और उसके बाद फिर उसके रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान क्या है? यानी उसकी किताबों पर ईमान, यानी जो किताब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उतारा है कुरान में, उसको पूरे को अपनी ज़िंदगी में अपनाना। लेकिन जब कोई इंसान उसको समझता ही नहीं तो किस तरह से अपनाएगा, कैसे अमल करेगा? और अगर इंसान का अमल नहीं तो ईमान अधूरा है। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ईमान का तकाज़ा क्या है कि अमल भी करो, अच्छे अमल करो। अमल के बगैर ईमान कंप्लीट नहीं होता। और असहाबा इकराम का ईमान हमारे सामने मिसाल है कि कैसा ईमान था उनका। क्या वो रसूलुल्लाह पर ईमान लाकर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके सामने के हाथ पर ईमान लेकर आए, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी का अमल किस तरह से बदला। बेहतरीन नमूना है हमारे असहाबा इकराम कि उनके पास इस चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं था कि ईमान लाकर कोई शख्स अमल ना करे, उसकी ज़िंदगी ना बदले। लेकिन आज हमारा ईमान, हमें खुद अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हाँ, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि वाकई हमें अल्लाह के ईमान का माना पता है कि क्या है अल्लाह पर ईमान। उसके बाद हमारे अंदर से सब बुत निकल गए। फिर अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उसकी किताब पर ईमान, उसका तकाज़ा क्या है, उसको समझा जाए, हाँ, उसको सही तरीके से पढ़ा जाए, फिर उसके ऊपर अमल किया जाए। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है, कितने लोग हैं ये जो इस चीज़ का पता है जिनको, या फिर वो अमल भी कर रहे हैं। कितने लोग तो इस कुरान को सिर्फ वजीफ़ों के लिए, तस्बीहात के लिए, हाँ, इसी तरह से मर कर पढ़ने के लिए, यानी बख्शने के लिए, हाँ, घर में लटकाने के लिए, और इसी तरह से शादियों के लिए, बरकत के लिए पढ़ा जा रहा है कुरान। लेकिन क्या इससे ईमान का तकाज़ा पूरा होता है? ईमान का तकाज़ा है कि उसको समझा जाए, पढ़ा जाए और फिर उस पर अमल किया जाए, तो ही ईमान कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद तमाम रसूलों पर ईमान और ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। क्या ईमान? कि जो भी आपको शरीयत मिली वो हक़ है, वो सच है, उसको मेरी ज़िंदगी में अपनाने के लिए है। यानी जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं उन पर अमल किया जाए, हाँ, उनको अपनाया जाए। लेकिन आज अफसोस की बात है, कितने मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको अपने नबी के बारे में पता हो, पूरे नबियों के बारे में पता हो, आदम अलैहिस्सलाम किससे दुनिया शुरू हुई, किससे इख्तिताम हुआ, कितना नॉलेज कम है। आज हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को, बड़ों को टीवी के चैनल्स पता हैं, वो ऑपरेट करने आते हैं, हाँ, मैसेजेस व्हाट्सएप पे करने आते हैं, फ़ोटोआँ खींच कर डालने आती हैं, लेकिन किसी को ये चीज़ें पढ़नी नहीं पता, या ये चीज़ें नहीं पता कि हमारे कितने पैगंबर, जब तक दुनिया बनी अब तक कितने पैगंबर आए, हाँ, और आखिरी पैगंबर, मेरे ख्याल में बहुत से मुसलमान ऐसे होंगे कि जिनको अपने पहले और आखिरी पैगंबर भी पता है कि नहीं है। और दूसरा, फिर अगर हमें पता ही नहीं, फिर उनकी ज़िंदगी के बारे में क्या पता है हमको? आज कितना वक्त है कि हम उनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में, उसके बारे में अमल करें। उनकी जब तक हमें ज़िंदगियों का ही पता नहीं, हम अमल क्या करेंगे? कितने हैं जिनके पास किताबें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानने का शौक़, फिर उसके बाद उस पर अमल करने का शौक़। कितनी सच्ची मोहब्बत थी असहाबा इकराम को अपने दीन से, अपने नबी से, हाँ, कि एक एक असहाबा एक एक फुट स्टेप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलो करते थे। लेकिन आज हमारा ये नाम भी क्या है, ये मोहब्बत भी एक तरह से झूठी मोहब्बत है कि हम नाम पर झूमते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के उंगलियों को चूमते हैं, आँखों को लगाते हैं, कुरान को सर को लगाते हैं, हाँ, उसके नीचे से दुल्हनों को, दूल्हे को गुजारा जाता है। लेकिन जब अमल की बारी आती है, जब समझने की बारी आती है, तो सबके पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानने का। ईमान का तकाज़ा अधूरा है, मोहब्बत का तकाज़ा तो अधूरा है।
जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा ना जाए, समझा ना जाए और फिर उसके मुताबिक अमल न किया जाए। हमारी ज़िंदगी के तमाम आमाल जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के भी दुनिया के भी उनके तरीके के मुताबिक नहीं होंगे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। क्या पढ़ा हमने सूरत आले इमरान में? ये सारी इतनी अच्छे से समझाया गया था उसमें कि सुन्नतों की पैरवी ना करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानना, उनके तरीके पर न चलना दुनिया में भी रुसवाई का सबब बनता है और आखिरत में भी। और फिर आखिरत पर ईमान, आखिरत पर ईमान ज़बान से कहने से क्या हो जाता है? हमारा आखिरत पर ईमान है, हम अल्लाह के पास उठाए जाएंगे, इस पर भी जब तक हमारा अमल ना हो, हमारा अमल भी गवाही देना चाहिए। अगर हमें वाकई आखिरत पर ईमान है तो क्या हम आखिरत को सामने रख के हर अमल करते हैं? हमारी ज़िंदगी का हर अमल ये सोचकर है कि मुझे अल्लाह के पास इसका जवाब देना है। हम हर वो अमल करते हैं कि जिसको हमें कल को यौमुल हिसाब के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदगी ना हो, हमें अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, अल्लाह के सामने तमाम लोगों के सामने हमारी रुसवाई ना हो। क्या आज ये सोचकर हम अमल करते हैं? तो ये अगर सोचकर हम अपनी ज़िंदगी को आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी नहीं गुजारते तो हमारा ये कहना क्या है? झूठ है, सच नहीं है। सच सच अपनी अपनी ज़िंदगियों को देखिए कि कितना हमें आखिरत पर ईमान है। जब अपना वक्त ज़ाया करते हैं, जब हम अपना वक्त दीन के लिए वक़्फ़ नहीं करते, हम नमाज़ों को सही वक्त पर नहीं पढ़ते, कुरान को हक़ नहीं देते, जितने शरीयत के अहकाम हैं या जितने भी तरीके हैं दीन इस्लाम पर चलने के, क्या हमें पूरा हक़ अदा कर रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ अगर हमें पता है कि यौमुल हिसाब के दिन अल्लाह के सामने पेश की जाएगी, हमारे नामा-ए अमाल हर सुबह और हर शाम अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं और यौमुल हिसाब के दिन अल्लाह ताला हमारे आमने सामने रूबरू क्या करेंगे? हमारे अमालों का बदला देंगे। क्या उस दिन को सामने रखकर आज दुनिया में हम वक्त गुजार रहे हैं? अगर वाकई उस दिन का सामना करना हमें पता हो तो दुनिया में कभी हम गफलत से वक्त ना गुजारें, अपने वक्त को ज़ाया ना करें, या फिर हम दुनिया में एक मुत्तकी परहेज़गारी वाली ज़िंदगी ना गुजारें। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अल्लाह का तक़वा नहीं आएगा हम कोई अमल नहीं कर सकते। और फ़क़द दल्ला दलालम बईदा, अलबत्ता तहकीक वो भटक गया, भटकना दूर का, यानी यहाँ पर दूर क्या है? दुनिया तो इंसान के करीब है, आखिरत जो है इसका नुकसान है। आखिरत का नुकसान है कि अगर कोई शख्स यकीन तो ज़बान से तो कहता है लेकिन अगर उसके ऊपर अमल वैसा नहीं है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, सुम्मा फिर कफरू वो काफिर हो गए, सुम्मा फिर आमनु फिर ईमान लाए, सुम्मा फिर कफरू फिर काफिर हो गए, सुम्मा फिर अज़दादू बढ़ गए कुफरन कुफर में, सुम्मा कफर लम नहीं यकुन है अल्लाह नहीं है अल्लाह लियग़फ़िरा बख्शने वाला लहुम उनको, वला और ना लियहदियहुम हिदायत देने वाला है, सबीला रास्ते की। यानी यहाँ पर इशारा है मुनाफिकीन की तरफ कि 2 मरतबा ईमान यानी शऊरी ईमान और फिर इंसान उससे भटक जाए। यानी ईमान लाने के बाद कुफर करना क्या है? फिर उसके बाद इंसान के लिए हिदायत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं कि जब एक बार इंसान ईमान में दाखिल हो जाए, उसको सही गलत पता चल जाए, अल्लाह के बारे में पता चल जाए, फिर उसके बाद में फिर वो अपनी दुनिया में पलट जाए। देखिए इसकी मिसाल इससे हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये तो एक काफिर मुनाफिक की मिसाल है कि वो दीन से इस्लाम की तरफ आया, लेकिन फिर इस्लाम को देखा पढ़ा, फिर उसके बाद में फिर अपने ही दीन पर वापस पीछे पलट गया। तो अगर हम अपने आप को देखें तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान में आते हैं, कुरान से जुड़ते हैं, फिर उसके बाद में जब कोई बातें अपने मतलब की नहीं दिखती या फिर कुछ बातें या कुछ अल्लाह के अहकाम अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लगते हैं या अपने माहौल के ख़िलाफ़ लगते हैं, तो कितने लोग हैं जो कुरान की क्लास छोड़ देते हैं। यानी जो चीज़ अपने फ़ायदे की होती है उतनी तो सुनेंगे, उतनी पर अमल की भी कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ से थोड़ा सा टकराव हो जाता है, जहाँ से कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए कहा जाता है या फिर कुछ अमल करने के लिए कहा जाता है, तो कितने लोग ऐसे हैं।
جو پھر ایمان پہ آنے کے بعد یعنی قرآن اس کے یعنی نور میں روشنی میں آنے کے بعد پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن روشنی ہے، اندھیرے کیا ہیں؟ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے زندگی کے، وہ اندھیرے ہیں، وہ ظلم ہیں۔ لیکن ایک شخص ساری زندگی ظلم میں رہتا ہے، کہیں سے اس کو روشنی نظر آتی ہے، قرآن کی لائٹ نظر آتی ہے، پھر وہ اس میں چلتا ہے، پھر اس کو اس کی اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں کہ اچھا قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، یہ دعائیں پڑھنے کے یہ فائدے ہیں۔ لیکن جتنا جتنا اس کو اپنے مرضی کے مطابق سمجھ آتی ہیں باتیں، اتنی دیر تو سنتے رہتا ہے، لیکن جہاں اس کی مرضی کے خلاف یا اس کے لوگوں کے خلاف یا پھر اس تو بھی فوری پلٹ جاتا ہے، یا پھر کوئی قربانی نہیں دینا چاہتا۔ دین تو حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن بھی پڑھنا چاہتا ہے، جنت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن سیکریفائس کچھ نہیں دینا چاہتا۔ تو پھر ایسا شخص بھی کیا ہے؟ فقد دل فکفر ثم ازداد کفرا، پھر کفر میں ہی بڑھ گیا۔ یعنی وہی حال، وہی حلیہ، وہی حالات میں اپنی زندگی میں، یعنی پھر اللہ اس کو توفیق نہیں دیتے دوبارہ آنے کی۔ کیونکہ دیکھیے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھی ہے حق اور باطل کی، لیکن جب انسان کو کسی کو ماحول بھی مل جائے، نیک ماحول، اچھا ماحول، قرآن کی صحبت، تو پھر اس کا نور اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو اندر کی روشنی ہے وہ بھی بجھنی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ ثم ازداد کفرا، پھر وہ بڑھ گیا زیادہ اور کفر میں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ بخش دے، نہیں ہے اللہ کہ اس کو بخش دے، ولا لیہدیہم، اور پھر نہیں اللہ اس کو ہدایت دے، یعنی نہ پھر اس کو ہدایت ملتی ہے، نہ ہی اللہ کی طرف سے بخشش ملتی ہے۔ جب کوئی شخص ہدایت میں آنے کے بعد ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کر لے کہ وہی ماحول اچھا ہے، وہی لوگ اچھے ہیں، وہی طریقے اچھے ہیں، یہ کیا ہے اسلام لا کر یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ایسا بیٹھو ایسا کہو، اس سے ملو اس سے نہ ملو، اس کے سامنے پردہ کرو اس کے سامنے غیر، یعنی اس کے سامنے نکلنا ہے اس کے سامنے نہیں نکلنا، کیونکہ اسلام میں تو بہت سی چیزیں ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں، پابندیاں بہت زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بظاہر ہم اسلام میں آزاد ہیں، لیکن یہ آزادی صرف ہماری ظاہری ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی مومن ہے یا سچا ایمان لے کر آتا ہے پھر وہ آزاد نہیں، یہ زندگی تو صرف کافر کے لیے آزاد ہے۔ کیا حدیث ہے کہ جو زندگی ہے کافر کے لیے کیا ہے؟ وہ سونے کی سیز، لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے جیل ہے، قید ہے، اس کے لیے آزادی کہاں ہے؟ آخرت میں۔ آخرت میں اس کے لیے ہر انجوائمنٹ ہے، ہر طرح کی آزادی ہے، ہر طرح کے لباس ہیں، یعنی ہر طرح کی اس کی عیش و عشرت کی زندگی مومن کی آخرت میں ہے۔ دنیا میں تو وہ بندھا ہوا ہے اللہ کے قانونوں کے ساتھ۔ اب کوئی شخص اگر اس قانونوں کو یا اللہ کے ان طریقوں کو نہیں ماننا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر آزادی دی ہوئی ہے، چاہے کوئی پردہ کرتا ہے کرے، کوئی جھوٹ بولتا ہے بولے، کوئی اللہ کے حکموں پر چلتا ہے نہیں چلے، حرام کام کرتا ہے کرے، یہاں چاہے کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے۔ لیکن اصل میں ہم آزاد نہیں ہیں اگر ہم واقعی مومن ہیں۔ ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، ہر قدم پر دیکھنا ہے کس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کس چیز سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد یا پھر قرآن سے جڑنے کے بعد پھر اپنی زندگی میں واپس چلا جاتا ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ یاد کرنا، یہ پڑھنا سنانا، یہ وقت پر بیٹھ کے کھول کے بیٹھنا قرآن، نہیں میں اپنی مرضی سے کروں گی، جیسے چاہے میں زندگی جیوں، میری مرضی میرا اختیار بھی ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھے کہ اسلام لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اپنی مرضی ختم، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ، کیا ہو گیا؟ سب کچھ ختم، میری مرضی، میری انا، میری اپنی میں، سب کچھ ختم، سب کچھ اللہ کے تابع، سب اللہ کے فرما برداری میں لگا دینا ہے، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، یہ ایسی فرما برداری اللہ کو چاہیے۔ کیا معنی ہے مسلم کا؟ وہ اونٹ
जिसकी या वो जानवर जिसकी लगाम उसके मालिक के हाथ में हो, वो जिधर को चाहे उसको मोड़े। वो असल होता है अब्द, उसको कहते हैं गुलाम। और या फिर वो जानवर जो कम चारा खाए और ज़्यादा दूध दे। हम तो अल्लाह की इतनी नेमतें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या देते हैं अल्लाह को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें हमारे ऊपर दिन रात बरस रही हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए, सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादू कुफरा। लेकिन जब वो दोबारा कुफर करते हैं फिर अल्लाह उनको कुफर में और बढ़ा देते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को मौका देते हैं हिदायत हासिल करने का, रोशनी में आने का, कुरान से जुड़ने का। लेकिन अगर कोई शख्स उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाता, उसको इग्नोर कर देता है, तो फिर उससे वो मौका छीन लिया जाता है। मौका देते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि यौमुल हिसाब के दिन कोई शख्स ये कह नहीं सकेगा। हर एक के कान में आवाज़ हक की जाती है, कहीं ना कहीं से, कभी ऑडियो के ज़रिए से, कहीं आप किसी दोस्तों में बैठ के सुनते हैं कि अच्छा वो कुरान पढ़ाया जाता है या कुरान सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं उस आवाज़ पर कान लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं इग्नोर करते हैं, छोड़ो ये क्या दीन के सब बातें, बस इतना दीन काफ़ी है, नमाज रोज़ा कर लिया, चंद रिचुअल्स अदा कर लिए, बस काफ़ी है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को मौका देते हैं। लेकिन जब इंसान उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाता और अपने आप को गुमराही में रहना ही पसंद करता है, फिर अल्लाह भी छोड़ देते हैं कि जाओ, जब तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि अल्लाह ने हमें मर्ज़ी दी है ना, अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। इसकी बिना पर अल्लाह किसी से ज़बरदस्ती नहीं करते, राहें ज़रूर खोलते हैं। देखिए कितनी राहें खोल दी, कैसे हम घरों में बंद हो गए थे। अगर ये राहें ना खुलती, हम अपने घरों में वही जहालत में आ जाते थे, ना कोई दीन। क्योंकि इंसान अकेला कितना सुन सकता है बैठकर। ये तो महफिल की बरकत होती है कि इंसान डर के मारे, खौफ के मारे, कभी दुनिया का डर, कभी टीचर का, उस्ताद का डर होता है, इंसान वक्त की पाबंदी करता है। लेकिन अगर ये महफिल ना रहे तो फिर इंसान कहाँ से बैठ सकता है, कितना पढ़ सकता है, कितना सुन सकता है लेक्चर? बताइए, सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने ऐसी मुश्किलें थी, लेकिन उसके बावजूद ये कैसी आसानी की है कि अब इसमें क्या है, अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि इतनी आसानी को भी कोई कबूल ना करे। अब मैं कहाँ बैठी हूँ, आप कहाँ बैठे हैं, कौन कौन दुनिया के किस किस कोने से बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र। लेकिन अगर कोई सुनकर भी, समझकर भी, इतना सा भी कुर्बानी ना देनी चाहे, फिर यौमुल हिसाब के दिन अल्लाह ताला के पास कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। फिर ऐसे लोगों को अल्लाह और छोड़ देते हैं कि जाओ, जितनी जाना चाहते हो गुमराही में चले जाओ, क्या करना चाहते हो कर लो, लेकिन आखिर तुम्हारी डोर तो अल्लाह के हाथ में ही है। जाना तो अल्लाह ही के पास है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर लिहाजा अल्लाह ताला उनको कुफर में ही बढ़ा देते हैं। फिर उनके लिए हिदायत के रास्ते क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वला लियहदियहुम सबीला, वो नहीं हिदायत देते उनको सीधे रास्ते की, यानी फिर उनको नेकियों का मौका नहीं मिलता। इससे एक सबक ये भी मिलता है कि कहीं भी कोई नेकी का काम करने का, कोई कुछ सीखने का, कहीं से भी मौका मिले कभी गंवाना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं मैं तो कोई और हाई क्लास का, कोई और अच्छी इंस्टीट्यूट, कहीं और बड़ी जगह जाकर पढ़ूंगी, ये छोटा मोटा काम नहीं मैं करूंगी। ये तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी दुआएं हैं, या अभी वक्त नहीं है, अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं। कभी इंतज़ार ना करें। नेकी का जो वक्त, जो काम करने की तुम्हारे अंदर सलाहियत है, जो तुम कर सकते हो नेकी का काम फौरी कर लो, क्योंकि पता नहीं कब इंसान के लिए ये राहें बंद हो जाएं। और जो फिर आगे बढ़ता है अल्लाह उसको, अल्लाह का हाथ उसके पीछे हो जाता है, अल्लाह ताला उसको आगे भी करते ही जाते हैं। लेकिन जब एक इंसान पीछे हटना शुरू कर देता है फिर अल्लाह भी पीछे कर देते हैं कि जाओ। जब कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, पहली सफ में आना ही नहीं चाहता, पहल करना ही नहीं चाहता, तो अल्लाह ताला रास्ते बंद कर देते हैं। अब फर्ज करें एक
स्विच ऑन करना होता है, जिस वक्त लिंक आता है आपने सिर्फ बटन ऑन करना होता है। क्या मालूम अल्लाह इस पर किसको अजर दें कि एक शख्स इंतज़ार में बैठा हो, हाँ, और उसको ये हो वज़ू बना के कुरान रख के कि मैं फटाफट लिंक ऑन करूं। ये ऑन करना भी उसके लिए क्या हो जाए, अजर में, नेकियों में ज़्यादती का, हाँ, अजर व सवाब को बढ़ाने का ज़रिया। इतना छोटा सा काम है, लेकिन इसको भी कितने लोग गफलत में गंवा देते हैं। नहीं, रोटी बना लूँ, पहले बच्चों को सुला दूँ, पहले खाना पका लूँ। हाँ, ये दुनिया नहीं, ये दुनिया के काम ख़त्म नहीं होंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया के काम ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, कितने बड़े बड़े हमसे पहले काम करने वाले, हाँ, दुनिया में बड़ा नाम कमाने वाले लोग आके चले गए, आज कहाँ हैं? ये 7 ज़मीनों के अंदर पड़े हुए हैं, कोई उनको जानता भी नहीं है। हाँ, ये नेम, फेम, ये शोहरत, ये सब कुछ दुनिया में है और दुनिया में ही चला जाता है। इंसान अपनी आँखों से देखता है कि जो जवानी थी ढल गई, हाँ, माल था ख़त्म हो गया, हाँ, औलाद थी सब दूर हो गई, फिर तन्हा के तन्हा इंसान आखिरी वक्त में हो जाता है। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना छोड़ो, और तुम्हें जो नेकियों का मौका मिले उसको कम ना जानो, छोटा ना जानो। हाँ, कि इस पर तो मुझे कौन सा इनाम मिलने वाला है, कौन सा सर्टिफिकेट मिलने वाला है, कर गुज़रो। पता नहीं अल्लाह ताला कौन सी नेकी से खुश हो जाएं, कौन से अमल से राज़ी हो जाएं, या कौन सा तुम्हारा छोटा सा काम मीज़ान में डाला जाए वो बहुत बड़ा बन जाए। हाँ, कि एक इंसान इंतज़ार में बैठा है और अपने आप को तैयार करके बैठा है अल्लाह की किताब के लिए। कितना बड़ा एजाज़ क्या कि ये मामूली किताब है, ये बहुत बड़ी आसमान से फरिश्तों के ज़रिए से ज़मीन पर लाई गई किताब है। और कितने बड़े नबी पर, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम नबियों पर फ़ौक़ियत दी, फ़ज़ीलत दी, उन नबी के ऊपर इस किताब को उतारा गया। तो इस किताब का सीखना, इसके सीखने वाले भी कोई मामूली नहीं हो सकते, वो ख़ास लोग ही होते हैं जो इसकी इतनी कदर करते हैं। फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए रास्ते नेकी कमाने के अल्लाह खोलते रहते हैं, ज़राए खोलते रहते हैं। और लेकिन जो छोटे छोटे कामों को इग्नोर करते हैं, छोटे छोटे कामों की वजह से, हाँ, बड़ा अहम काम को कम समझते हैं कि लिहाजा कौन कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह तो तुम्हें जान रहा है ना कि तुम क्या सुन रहे हो, क्या कर रहे हो इस वक्त कुरान के साथ, उसका हक दे रहे हो कि नहीं दे रहे। ये सब चीज़ें क्या हैं, यौमिल आखिरत पर ईमान के साथ जुड़ी हुई हैं कि जिनको आखिरत पर ईमान हो, मुलाकात पर ईमान हो।